Hello everyone, welcome to Pitambra Educators. In this video, we are going to discuss the solution for the question paper of class 12th IT. I read your comments कि बहुत अच्छा हुआ है आपका एग्ज़ाम और जो वीडियोस थी उन्होंने आपको बहुत हेल्प किया इन द एग्ज़ामिनेशन. सो आई फेल्ट वेरी गुड. आई फेल्ट ओवरवेलमिंग बाय योर कमेंट्स. आपने इतनी रिस्पेक्ट, इतना लव शो किया है. सो thank you all. Let's begin the solution. So the first question, Mishit is very creative and is an excellent designer. He lacks communication skill. So obviously जब communication skill means हम किसी को अपनी बात नहीं समझा पाते हैं, then what happens, obviously happiness होगा नहीं. and एक ही negative word है यहाँ पे frustration. So this is the answer. Now next one, Ruchika is a teacher. While teaching in the class, she is telling her students about the importance of listening attentively. तो कौन सा incorrect options है जो कि डिस्प्ले कर रहा है importance of listening attentively. तो ये जो भी importance है इनमें से कौन सा incorrect option है वो select करना है. So here it breaks communication. Next, dash is a mental attitude reflecting a belief or hope can lead to positive and desirable outcomes. It helps us to achieve our dreams, continue hardworking towards achieving success. So what kind of mindset is it? What is the appropriate option for this kind of mental attitude? That is optimism. Now next question, Mohit is under a lot of stress due to examination during festival season. Which among the following is not the correct way to manage stress? तो stress को manage करने का कौन सा सही तरीका नहीं है. नेवर लुक एट योर अकम्पलिशमेंट शीट. तो अकम्पलिशमेंट मीन्स कि हमने क्या अचीव किया है लाइफ में, उसको अगर हम नहीं देखेंगे जहाँ पे भी हमने रिकॉर्ड किए हैं अपने अचीवमेंट शीट, तो अगर हम वो नहीं देखेंगे तो ओबियसली वी विल फील स्ट्रेस. सो दिस इज़ अ नेगेटिव पॉइंट. नेक्स्ट, इन स्प्रेडशीट कंटेंट ऑफ सेल अपियर्स इन द डैश एंड द सेल. तो ये हमने कल ही ICT स्किल वाली जो वीडियो थी उसमें डिस्कस किया था कि जो भी आपका कंटेंट होता है सेल का वो फॉर्मूला बार में दिखता है और सेल में दिखता है. Now sixth one, select the correct option with respect to spreadsheet. Workbook is a spreadsheet that has one or more worksheet. बिल्कुल सही है. Worksheet has one or more workbook, ये wrong है. Workbook में worksheets होती है, ना कि worksheet में workbooks होती है. A cell is a grid. Cell is a intersection होता है. Cell is a intersection of rows and column. Grid अगर हम बोलेंगे रोज़ और कॉलम की तो वर्कशीट होती है, ये सेल की डेफिनेशन नहीं है. सो दिस इज़ रॉन्ग. By default, data is sorted in ascending order in spreadsheet. This is correct. So first and fourth are correct. So option C is the correct option. Now Adarsh is maintaining data of his company in the form of files. He faces the problem of data redundancy and data inconsistency very often. तो डेटा रिडंडेंसी मीन्स डुप्लीकेशन ऑफ डेटा हो रहा है और इनकन्सिस्टेंट डेटा मीन्स हर फाइल में जो डेटा है वो अलग अलग वैल्यूज़ हैं डेटा की. तो उसे कौन सा फाइल सिस्टम यूज़ करना चाहिए. सो ओब्वियसली डेटाबेस अप्रोच हमने देखा है डेटाबेस कॉन्सेप्ट में कि डेटाबेस क्या करता है, रिडंडेंसी को रिड्यूस कर देता है. सो हेयर ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन. Rashid is maintaining various record of his sales in different independent files. His boss asked him to give a compiled report of his work. All data is stored in the independent files. It becomes difficult to access information out of multiple files. He is facing the problem of, अगर वो बहुत सारी फाइल से डेटा नहीं रिट्रीव कर पा रहा है, देन इट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ और लैक ऑफ डेटा इंटीग्रेशन. यहाँ पे थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, दैट इज़ डेटा इंटीग्रेशन. आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू DBMS. तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है. डेटा इज़ एसेसिबल बाय ओनली वन यूज़र. दिस इज़ रॉन्ग क्योंकि बहुत सारे जो यूज़र्स हैं वो डेटा को एक्सेस कर सकते हैं बाय यूजिंग DBMS. सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हेयर. 10th question, Mrigank works in a company. He identifies requirements of the end users, develop a specification to interact with database. He plays a major role in database designing. So its answer is system analyst. Dash is a collection of raw facts which have not been processed to reveal useful. तो यहाँ पे क्या होगा, data and information. आइडेंटिफाई लिमिटेशंस ऑफ डेटाबेस. तो यहाँ पे कौन सी है जो लिमिटेशन है, यूज़र फ्रेंडली नहीं हो सकता. ये सारे अगर आप देखोगे ABC तो ये लिमिटेशन नहीं है, एडवांटेज है. सो यार ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. एवरी एम्प्लॉय रिकॉर्ड मस्ट हैव अ नॉन रिपीटेड एम्प्लॉय ID. तो अगर हमें चाहिए कि किसी भी कॉलम में जो वैल्यूज़ हैं वो नॉन रिपीटेड हो, रिपीट ना हो, डुप्लीकेट ना हो, देन वी हैव टू सेट इट एज अ प्राइमरी की.
Question 14. Consider a table student with these attributes. The column admin number is the primary key. So this is a primary key. It means every value of this column will be, every record or every value for this attribute will be unique. Every student has a identified set of attributes that cannot be a super key in the table student. तो कौन सा ऐसा है जो कि सुपर की नहीं हो सकता? तो सुपर की में भी क्या होता है कि हर एक रिकॉर्ड, कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट, कलेक्शन ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट, जिनमें क्या होगा, रिकॉर्ड सेम नहीं हो सकता, कोई भी दो रिकॉर्ड्स जो है वो सेम नहीं होंगे. तो अगर हम एडमिशन नंबर और एस नेम देखें तो एडमिशन नंबर जो है टपल्स को यूनिक करेगा, बट अगर हम क्लास और मार्क्स देखें तो दो स्टूडेंट का क्लास और मार्क्स सेम हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ देर इज़ अ स्टूडेंट इन क्लास 12th एंड ही हैज़ गॉट 100 मार्क्स, तो और कोई भी हो सकता है जिसके 12th में हो और 100 मार्क्स आया. सो इट इज़ नॉट अ सुपर की. Now question number 15, we have to consider this table. These are the attributes: SID, supplier name, city, phone number, company, status. तो SID या SD जो है ये IDs हैं, तो ये यूनिक होंगी हर सप्लायर की, और ऐसी जो फ़ोन नंबर होता है वो भी यूनिक होता है हर एक सप्लायर का. सो हमें क्या सेलेक्ट करनी है यहाँ पे? कैंडिडेट कीज़. तो कैंडिडेट की में से ही एक जो होती है प्राइमरी की बनती है. तो कैंडिडेट कीज़ वो एट्रीब्यूट होते हैं जिनकी वैल्यू जो है यूनिक होती हैं. तो उस पूरे सेट को, जो भी ऐसे एट्रीब्यूट है जिनकी वैल्यूज़ जो होंगी यूनिक होगी, उन सारे एट्रीब्यूट्स के सेट को जो है हम कैंडिडेट की कहते हैं. तो यहाँ पे कौन से ऐसे एट्रीब्यूट्स है जिनकी वैल्यू जो है यूनिक होने वाली है? एक है SD और एक है फ़ोन नंबर. तो इन दोनों के सेट को हम कैंडिडेट की कहेंगे. सो यार ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. Parinidhi wants to remove all the records from the table customer with field this. Who dues status is clear. Select the query that will solve the purpose. तो हमें वैसे ही पता है कि delete यूज़ होता है for deleting the records, for removing the records, और asterisk sign नहीं आता है. So here option D is the correct option. Now next we have to display the list of the students in relation student with field these whose city name ends with letter D. तो ये बहुत इजी है, लेटर डी से एंड हो रहा है, यानी कि हमने पढ़ा था पहले परसेंटेज साइन आ जाएगा एंड देन डी, और कोट्स में क्लोज होगा. तो ये तीनों आपकी ऑप्शन हो सकते हैं. उसके बाद ये भी लिखा है कि हमें इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करना है. तो ऑब्वियसली डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए हम क्या करते हैं? ऑर्डर बाय एडमिशन नंबर डिसेंडिंग. तो देखिए कितनी इजीली इनके आंसर आ जा रहे हैं. तो ये तो क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट तो असेंडिंग होता है तो ये ऑप्शन कट हो गया, और यहाँ एस्ट्रिक लगा है तो ऐसे ही कट हो गया. तो अगर आपने सिंटेक्स अच्छे से पढ़े थे क्वेरीज़ के तो इसमें बहुत डिफ़िकल्ट नहीं आया है, बहुत ईजी क्वेश्चंस आए हैं. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू फॉरेन की. तो फॉरेन की के रिस्पेक्ट में क्या चीज़ यहाँ पे रॉन्ग है? इट इज़ रिटन दैट फॉरेन की ऑफ अ टेबल मस्ट हैव सेम नेम एज द एसोसिएटेड प्राइमरी की. तो हमने ये पढ़ा था जब हम फॉरेन की जॉइनिंग टू टेबल्स हमने पढ़ा था, तो हमने देखा था कि जो फॉरेन की और प्राइमरी की है वो अलग अलग हो सकते हैं उनका नेम. सो हेयर ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. सुखदेव हैज़ क्रिएटेड अ रिलेशन दिस टीचर ID विद दीज एट्रीब्यूट्स. हमें क्या आइडेंटिफाई करना है? करेक्ट क्वेरी टू डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ टीचर विद नो लास्ट नेम. तो लास्ट नेम इज़ नल. इक्वल्स टू नल कुछ नहीं होता, इक्वल्स टू इज़ नल भी रॉन्ग सेंटेंस है, इज़ नॉट नल भी रॉन्ग है, यहाँ पे होगा इज़ नल. सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. नाउ ही हैज़ टू क्रिएट अ रिलेशन सेल्स. तो सेल्स टेबल बनानी है और उसे एक टपल ऐड करना है, यानी कि एक रो इंसर्ट करनी है. तो रो इंसर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? इंसर्ट कमांड यूज़ करते हैं. सो इंसर्ट वाले दो हैं यहाँ पे. अब हमें ये भी बताना है कि वो DDL कमांड होता है या DML. सो इंसर्ट इज़ अ DML कमांड. कंसिडर आवर टेबल फ्लाइट्स, जिसमें ये एट्रीब्यूट्स हैं. वी हैव टू सेलेक्ट द कमांड टू फाइंड एवरेज प्राइस ऑफ ऑल द फ्लाइट्स फ्रॉम सोर्स दिल्ली टू डेस्टिनेशन. तो यहाँ पे एक स्टार्ट लोकेशन है और एक डेस्टिनेशन लोकेशन है, यानी कि स्टार्ट कहाँ से हो रही है फ्लाइट और एंड कहाँ पे हो रही है. तो इनकी जो वैल्यू है आपकी दिल्ली और मैंगलोर दोनों होनी चाहिए ना. दिल्ली से स्टार्टिंग लोकेशन होनी चाहिए और एंडिंग लोकेशन मैंगलोर होनी चाहिए. तो ये दोनों कंडीशन आपकी ट्रू होनी चाहिए. तो इसके लिए हम एंड यूज़ करेंगे. तो देखिए एंड इसमें यूज़ हुआ है और एक यहाँ पे यूज़ हुआ है. अब ये तो बिल्कुल सेम है, कंडीशन तो इन दोनों में सेम है. अब क्या देखना है हमें? फंक्शन. यहाँ पे एवरेज लिखा है, यहाँ पे AVG लिखा है. तो AVG इज़ द फंक्शन विच इज़ यूज फॉर कैलकुलेटिंग द एवरेज. तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही है. वाइल बुकिंग ऑन एयर फ्लाइट टिकट रिजर्वेशन साइट, इट आस्क यू टू क्रिएट अ फाइल विद अ यूज़र नेम एंड पासवर्ड. तो ये सेम आपका स्टडी मटेरियल से ही क्वेश्चन आया हुआ है. इसमें आपका
ये जो फीचर है जिसमें प्रोफाइल और यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ सिक्योरिटी फीचर. नाउ 23rd क्वेश्चन, आफ्टर अ रेलवे टिकट हैज़ बीन बुकड ऑनलाइन, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑप्शन टू रिसीव अ कॉपी ऑफ टिकट. तो कॉपी ऑफ टिकट हमें किसके थ्रू आता है, ईमेल के थ्रू. सो हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट. हेयर वी हैव टू टेल द वेबसाइट ऑफ IRCTC पोर्टल. सो व्हाट इज द वेबसाइट, irctc.co.in. so its option is D. नेक्स्ट 25th वन, ई गवर्नेंस के बारे में यहाँ पे कौन सा जो स्टेटमेंट है दैट इज़ रॉन्ग. सो लेट्स सी. ICT टूल्स इंक्लूड इंटरनेट, लैंड, मोबाइल्स, ये करेक्ट है. इट प्रोवाइड एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन फॉर द सिटीजन्स बाय द गवर्नमेंट, ये भी करेक्ट है. इट एनेबल सिटीजन टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली आफ्टर पेइंग मनी, तो हमें कोई मनी नहीं पे करनी होती इन्फॉर्मेशन के लिए. सो दिस इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट. नाउ DIS NIC, तो ये हमने वेब ऑपरेटिंग एप्लीकेशन वाले जब MCQ डिस्कस किए थे तो उसमें हमने इसका फुल फॉर्म देखा था, दैट इज़ डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर. नाउ नेक्स्ट, इन इंडिया द मेन थ्रस्ट फॉर ई गवर्नेंस वॉज प्रोवाइडेड बाय NIC NET, नेशनल सैटेलाइट बेस्ड कंप्यूटर नेटवर्क. सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट. यहाँ पे हमें क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एडवांटेज ऑफ ऑनलाइन ट्यूटोरियल. इट प्रोवाइड्स फ्रीडम, ये बिल्कुल सही है. लर्नर्स कैन लर्न, ये भी करेक्ट है. ऑडियो वीडियो एनरिच, ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है. रॉन्ग कौन सा स्टेटमेंट है देन, लास्ट वाला कि विदाउट इवन हम इंटरनेट कनेक्शन के बिना भी यूज़ कर सकते हैं, ये रॉन्ग है. नेक्स्ट, हेल्प हिम टू आइडेंटिफाई द नॉन एजुकेशनल वेबसाइट्स फ्रॉम द गिवन लिस्ट. तो यहाँ पे ये तीनों तो क्या है आपके एजुकेशनल वेबसाइट्स हैं. ये भी .com इज़ अ नॉन एजुकेशनल वेबसाइट. नाउ 30th क्वेश्चन, ऑप्शन दैट डज नॉट प्रोवाइड ऑनलाइन पेमेंट. तो कैश ऑन डिलीवरी में ऑनलाइन पेमेंट नहीं होता है. नाउ वी हैव टू टेल द वेबसाइट फ्रॉम वेयर वी कैन डाउनलोड द NCERT बुक्स, ncrt.nic.in. तो ये क्वेश्चंस बहुत इजी आए थे, आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही थी. वेब ऑपरेटिंग एप्लीकेशन में डायरेक्ट आप लास्ट लाइन पढ़ के ही जो है आंसर टिक कर सकते थे. सो आई होप आपने जल्दी से सही अटैम्प्ट किए होंगे. नाउ नेक्स्ट वन, यू हैव टू आंसर एनी 5 आउट ऑफ 7. 2 टेबल्स आर गिवन, बिल्कुल जैसा सैम्पल पेपर में आपका था बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे भी फॉर्मेट फॉलो हुआ है. 2 टेबल्स आर गिवन सेक्शन सी में और इनसे बेस्ड आपको क्वेश्चन के आंसर करने हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 32, ये 32 वाला जो क्वेश्चन है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ये क्लियर नहीं था. यहाँ पे डिस्प्ले एवरेज प्राइस ऑफ प्रोडक्ट्स लेस देन 500, बट अगर आप इसके ऑप्शंस देखेंगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा क्योंकि इन्होंने ग्रुप बाय के साथ वेयर लगाया है तो हमें पता है कि ग्रुप बाय के बाद वेयर नहीं आता है. यहाँ पे भी ग्रुप बाय के बाद वेयर लगाया है तो इट इज़ रॉन्ग. अब जब ग्रुप बाय और हैविंग वाले हैं इनमें से हम देखते हैं कि किसका सिंटेक्स रॉन्ग है. यहाँ पे हमें लेस देन 500 का है जबकि इसमें लेस देन इक्वल टू लगाया है तो यहाँ पे 500 वाला भी कंसिडर हो जाएगा. तो दिस वन इज़ ऑल्सो रॉन्ग. तो कौन सा बचा हमारे पास, सी ऑप्शन बचा. तो आई हैव टोल्ड यू कि अगर आपको सिंटेक्स लर्न है तो आप इजीली सही ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते थे इसमें. नाउ कंसिडर द टेबल प्रोडक्ट इन दिस एंड वी हैव टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स ऑफ P11, P123 एंड बिलोंग टू आइदर दिल्ली और लखनऊ. तो हमें क्या सेलेक्ट करना है कि जिनके रिकॉर्ड्स P11, 1, 2, 3 में हैं तो ओब्वियसली इन ऑपरेटर इनमें वर्क कर जाएगा. तो यहाँ तक तो सारी क्वेरीज सेम है. अब यहाँ पे और आ गया, जबकि हमें क्या करना है, जो जिनमें ID ये है एंड लिखा है और नहीं लिखा है तो ओब्वियसली ये वाला ऑप्शन रॉन्ग हो गया. अब ये 2 ऑप्शन बचे आपके पास. यहाँ पे ग्रुप बाय लगाया है, ग्रुप बाय का तो कोई यूज़ ही नहीं है, कोई एग्रीगेट फंक्शन यूज़ नहीं हुआ है. नेक्स्ट, अब ये दोनों कंडीशन हमारे पास बची हैं. सो लेट्स सी कि इनमें क्या डिफरेंस है. यहाँ पे आपका आ गया है सेलेक्ट स्टार, ये रॉन्ग है आपका. एंड देन सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर PID इन P11, 1, 2, 3 and city in Delhi and Lucknow. So here option A is the correct option. ये दोनों ऑप्शन एक से थे, बस यहाँ पे और एंड का डिफरेंस आया था तो और नहीं होगा क्योंकि हमें ये दोनों कंडीशन मीट करनी है. नाउ नेक्स्ट वन, कंसिडर द टेबल सप्लायर इन क्वेश्चन नंबर 33. सेलेक्ट अप्रोप्रिएट क्वेरी टू डिस्प्ले सप्लायर नेम एंड प्रोडक्ट नेम. तो यहाँ पे देखिए सप्लायर नेम और प्रोडक्ट नेम हमें करना है जबकि यहाँ ID और प्रोडक्ट नेम हो रहा है. तो ये तो ऐसे ही रॉन्ग हो गई ये क्वेरीज क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट ID हो रही है इंस्टेड ऑफ प्रोडक्ट नेम. उसने बोला प्रोडक्ट नेम करना हमें. सो हेयर सप्लायर नेम एंड प्रोडक्ट नेम के जो कॉलम है जहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है वो S नेम एंड PROD नेम है, PROD नेम एंड S नेम. सो हेयर वी कैन ईजिली सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज ओनली थर्ड वन इज करेक्ट. सो हेयर ऑप्शन C इज द करेक्ट वन. नाउ नेक्स्ट इज
वी हैव टू चेंज द डेटा टाइप ऑफ अ कॉलम। तो कॉलम के डेटा टाइप को चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑल्टर टेबल टेबल नेम, देन मॉडिफाई, देन जो भी हमें डेटा टाइप जिस भी कॉलम का चेंज करना है, यहाँ पे PID का चेंज करना था और जो भी अपडेटेड वाला है वो लिख देते हैं। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन। कंसिडर द टेबल प्रोडक्ट एंड सप्लायर एंड वी हैव टू डिस्प्ले नेम ऑफ ऑल सप्लायर्स अलॉन्ग विद देयर प्रोडक्ट नेम। तो सप्लायर का नेम और प्रोडक्ट नेम करना है, तो सब में ही सप्लायर नेम और प्रोडक्ट नेम लिखा हुआ है। यहाँ पे दोनों टेबल आपकी यूज़ हो रही है, सप्लायर नेम और प्रोडक्ट नेम, तो दोनों टेबल यूज़ हो रही है। तो एक बार कंडीशन भी चेक कर लेते हैं, कंडीशन भी इन तीनों में यूज़ हुई है, इसमें कंडीशन नहीं है। जो दो टेबल को ज्वाइन करने के लिए आपका यूज़ होती है कंडीशन, इट इज़ नॉट मेंशन इन फोर्थ वन, तो ये रॉन्ग हो गया। अब हमसे कह रहा है कि दोज हु डू नॉट बिलोंग टू सिटी दिल्ली एंड जयपुर, जबकि इसमें सिटी इन दिल्ली और जयपुर, इसका मतलब कि वो रिकॉर्ड फैच हो जाएंगे जो भी बिलोंग करते हैं सिटी दिल्ली और जयपुर को, तो ये हो जाएगा रॉन्ग। नॉट इन बोला है, सो दिस इज़ नॉट इन ऑपरेटर, ये सही हो गया। सिटी नॉट, ये भी नॉट ऑपरेटर होता है, तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन भी सही है। सो हेयर सेकेंड एंड थर्ड आर करेक्ट, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज, दिस इज़ वेरी इजी, एप्लीकेशन दैट रिक्वायर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, एप्लीकेशन दैट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन। इसमें हमें एक्स और वाई को इनसे मैच करना है, तो आपकी फाइनेंशियल ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वाली कौन सी सर्विसेज होती है, दैट आर ऑनलाइन रिजर्वेशन एंड बिल पेमेंट। तो एक्स के साथ आपका आएगा फर्स्ट एंड फोर्थ, तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट है। हेयर वी हैव टू टेल द वेब पोर्टल फॉर दिस वेबसाइट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टरी। तो इसके लिए आपकी सही वेबसाइट है goi.directory.nic.in, जो कि आपकी बुक में दी है, जबकि हमने देखा था कि जो रियल में अब है अपडेटेड वाली वो है goi.directory.gov.in। So this much in this video. Now all the best for your remaining exams and stay tuned for term 2 preparation. Thank you for watching this video.